ثانية كوكوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے آیا نمبر آئی تھنک یہ کور کر لی تھی، لیکن دس واز دا لاسٹ ون، تو ہم یہیں سے اسٹارٹ کرتے. سو the ayah is ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن ليسجننه حتى حين. کہ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے تو بہتر ہے تو مجھے قید میں رکھ لے، مطلب کیا چل رہا ہے میرے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے سن لی کہ آؤ چلتے ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ آیات دیکھی. آؤل آیات، انہوں نے کچھ آیات دیکھی. اب آیات دیکھنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھی اور ان کو پتا چل گیا کہ مجھے یہاں پہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے رہنا پڑے. ٹھیک ہے، کچھ وقت مجھے یہاں پہ لگے گا ابھی جیل میں. اب سین یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ان کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ جی وہ خوبصورت ہے. اور جو تھوڑا بہت ان کو زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں دوسری بات آتی ہے کہ ان کو خواب کی انٹرپریٹیشن آتی ہوتی تھی. لیکن یہ والی بات جو ہم پیچھے سے کرتے آئے ہیں کہ ان کو صرف خواب کی انٹرپریٹیشن نہیں آتی تھی. ہی واز اے وائز پرسن ان دا سینس کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی یا کوئی چیز ان کے سامنے آتی تھی تو وہ فوراً سے ان کو کلک ہو جاتا تھا، انہیں پتا چل جاتا تھا کہ اب اس کی وجہ سے یہ ہونے والا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فور کاسٹنگ یا رسک رسک اسیسمنٹ یو کین سے. ٹھیک ہے، رسک اسیسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کہ جی فار ایگزامپل آپ گاڑی چلا رہے ہو اینڈ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو گاڑی ہے یہ آ، ایک چھوٹا بچہ چلا رہا ہے جو کہ انیکسپیرینسڈ ہے، اور جو روڈ ہے وہ وقتی طور پہ تو سیدھی ہے لیکن اس کے بعد جو روڈ ہے وہ سیدھی ہے. اور روڈ سیدھی ہونے کے ساتھ پھر آگے سے تھوڑا سا آگے سے کٹ اتنا ڈینجرس ہے. تو ناؤ یو کین فور سی یا یو کین انڈرسٹینڈ کہ یار یہ بچہ چلا رہا ہے، یہ یہاں پہ گاڑی سے ٹرن نہیں ہو. اب کچھ کیسز کے اندر یہ چیز obvious ہو جاتی ہے، کچھ کیسز کے اندر یہ چیز obvious نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ملٹیپل اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، ثم بدا لہم، کہ ان لوگوں کو نا دس از ناٹ جسٹ حضرت یوسف علیہ السلام، ان لوگوں کو یہ چیز پتا چل گئی. اب ان لوگوں میں کون ہے یہاں پہ؟ ان لوگوں کے اندر پیچھے سے جو چل رہا ہے چار لوگوں کا ذکر ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس بندے نے خریدا تھا دا عزیز، ان کی وائف، اور ایک بندہ تھا جس سے شہادت لی گئی تھی. اب وہ جو شہادت لی تھی وہ والا کام تو قصہ تو ہو گیا پرانا، تو وہ تو ہے نہیں، تو پیچھے بچے تین بندے. اب جو یہ تین بندے ہیں ان تین میں سے بھی جو وائف ہے وہ تو پیچھے ہے. جو یہاں پہ کیس ہیئرنگز ہو رہی ہیں یا باقی چیزیں جہاں پہ وہ ساری سچویشن جا رہی تھی جس طرف جا رہی تھی، تو ان سب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام از گوئنگ اوے فار سم ٹائم. تو جو بھی وہ کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دے آلسو گاٹ دا سیم آئیڈیا. سو دس واز سم تھنگ وچ واز ویری obvious. اب اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل میں آ گئے، اور جیل میں انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے رہنا ہے، لمبے عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور پھر جب وہ جیل میں گئے، جیل میں داخل ہوئے، تو ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی داخل ہوئے. یعنی کہ جو ان کا روم تھا وہاں پہ دو اور لوگ تھے، تین بندے تھے اس ایک جیل میں. ٹھیک ہے،
قال احدهما، उनमें से, उन दोनों में से एक ने बोला, इन्नी अरानी अक्सिरु खम्र, कि मैं अपने आप को देखता हूँ, अक्सिरु खम्र, कि मैं अंगूरों का जूस निकालूं, जो वाइन है मैं वो बना रहा हूँ। वकाल अल आखरू, और उसमें से एक ने ये बोला, और आखरू जो रह गया, यानी कि हजरत यूसुफ और उस एक बंदे के अलावा जो दूसरा रह गया, उसने एक बात बोली, इन्नी अरानी, मैं अपने आप को देखता हूँ, अहमिलु फौका रअसी खुब्ज़न खुब्ज़न ताकुलु तैरू मिन, कि मैं अपने सर के ऊपर आ, एक, जैसे रोटी का टुकड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से मैं एक अपने सर के ऊपर मैं कुछ लेके जा रहा हूँ जिसको परिंदे खा रहे हैं। तो इन दोनों ने अपने ख्वाब के बारे में बात की। एक को ख्वाब आया कि मैं वाइन निचोड़ रहा हूँ, दूसरे को ख्वाब आया कि मैं सर के ऊपर परिंदे, सर के ऊपर मैं कुछ लेके जा रहा हूँ जो परिंदे खा रहे हैं। नब्बे न बितावील, हमें आप इसकी तावील बताएं, इसके पीछे इसकी इंटरप्रिटेशन बताएं। इन्ना न इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, बेशक हमें आप मुहसिन लगते हैं, अच्छे आदमी लगते हैं। ठीक है कि कोई भी बंदा आपको करेगा तो आप अच्छे से उनको डील करेंगे, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो इनकी तावील अगर आपको मतलब पता है तो आप हमें इसकी तावील बता सकते हैं। अब ये दो ख्वाब है, इन दो ख्वाब में से आप बताएं कि दोनों ख्वाब अच्छे हैं, दोनों ख्वाब ऐसे हैं जिसकी तुक नहीं बनती, या कोई एक ख्वाब थोड़ा बेहतर लग रहा है और एक ख्वाब थोड़ा सा मतलब सैडनेस या बुराई वाली साइड पे लग रहा है। आप क्या समझते हैं इन दोनों केसेस? दूसरा बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। पहले वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये मुझे पता है इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। कुछ पहला नेगेटिव, बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, क्योंकि उस टाइम पे जो शराब है वो हराम तो थी नहीं, तो शराब निकाल रहे हैं मीन्स के ही इज इन द गार्डन और वो शराब को शराब निकालें, तो दैट मस्ट बी अ गुड थिंग। और यहाँ पे वो अपनी रोटी यानी कि अपना रिस्क जो है वो सर पर लेके जा रहे हैं जिसको परिंदे खा रहे हैं, यानी कि उनसे कुछ ले रहे हैं, तो दिस मस्ट बी समथिंग नेगेटिव। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे वो परिंदों को कुछ खिला रहे हैं, तो दिस कैन बी पॉजिटिव, और शराब हराम है तो दैट इज नेगेटिव। कैन गो इधर वे, वी डोंट नो। ठीक है, ये वाली बात मैंने इसलिए की क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस चीज को बेस बना के कहते हैं कि जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि ख्वाबों की क्या ताबीर होती है, इसलिए आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ये वाला इल्म देते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होता, किसी का तुक्का लग गया तो तुक्का लग गया होगा, अदरवाइज इतनी कोई वो नहीं होती। हर बंदे की अपनी अपनी चीजें होती हैं। अल्लाह ताला मुबशरात जरूर देते हैं ख्वाब के अंदर, और वो क्लियर होती है, क्लियर कट होती है। लेकिन इस तरह के ख्वाबों की तावील अगर करवानी है तो आपको टाइम मशीन में घुस के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पुराने जमाने में जाके मिलना पड़ेगा, या फिर जब जन्नत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी ना, ख्वाब याद रखना, उनसे जाके पूछेंगे। मुफ्त में इस दुनिया में ये पूछने की या ये वाली चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदे का अपना तुक्का ही होता है, टू बी ऑनेस्ट, जैसे अभी हमने तुक्के मारे। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो तुक्के हैं ये सही थे कि नहीं। अच्छा हमसे मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। एक आदमी अगर कोई क्वेश्चन अगर कुछ पूछ रहा है, यानी कि ये काफी अरसा साथ रहे होंगे ना यहाँ पर, जब उसके बाद फिर उन्होंने उनके बारे में जाना होगा, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन किया होगा ना, मतलब अपनी ख्वाबों की ताबीर कोई ऐसी तो नहीं पूछेगा ना कि मिलते ही फौरन।
नॉट मिलते ही, तो ये लेकिन काफी। नॉट टू मच टाइम, क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है वो वदाखला हुआ है कि जब वो गए तो उनके साथ दो बंदे थे, ठीक है। और उसके बाद कौला, तो उनमें से एक ने बोला, तो मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम वो साथ नहीं रहे। जैसे ही वो एंटर हुए तो ये दोनों साथ थे। लेकिन यस, बिल्कुल ऐसे ही नहीं हुआ कि अंदर जा रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैंने ये ख्वाब देखा, इस तरह भी नहीं हुआ। बट या बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा। ठीक है। ख्वाबों की ताबीर इतनी जल्दी, हो सकता है उनकी बातों बातों में कुछ ऐसी बात निकली हो जिससे उन्होंने जिक्र कर दिया हो। वरना कोई नहीं तो आदमी शुरू में। हम्म। देखो, वो ऐसा ना भी हो ना, आपके साथ दोस्त और आपको ऐसे ऊट पटांग ख्वाब आए जेल में, और करना ही क्या है। वो बंदा बैठ के ये डिस्कस कर लेता है, यार मुझे ये ख्वाब आया, किसी को कोई आइडिया है क्या बनता है। फारिग थे उस वक्त सारे, सही है। लेकिन बस हाँ ठीक है। वो ज्यादा मतलब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वो बस दाखिल हुआ उन्होंने, वो पूछा, सही है, चले। देखिए वेले बैठे हैं, कुछ ऐसा कोई और बंदा है नहीं, बात करनी है, बात करने को कुछ और है नहीं, तो ये रीसेंट ख्वाब हुआ था। तो दो बंदे हैं, उन्होंने डिस्कस कर लिया, दो में से एक हजरत यूसुफ है, उन्होंने जवाब बता दिया, अल्लाह खैर। उन्होंने कौन सा जाके सीवी मांगी होगी पहले। अब आता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब। कौला, उन्होंने कहा, ला यातिकुमा तो आम के, आ, आप दोनों ने तो आमन तो जक़ा नहीं, ठीक है, कि आप दोनों को जो खाना मिला है, ठीक है, वो आप यूसुफ का जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले, मैं अभी बता देता हूँ। नॉट come to both of you food you were provided, okay, I mean illa naba uh, illa naba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma, ओके, ठीक है, कि भी जो खाना आना है, दोपहर का खाना आना है या कुछ भी, मैं उससे पहले आपको ताबीर बता दूंगा या बता देता हूँ। तो दिस मस्ट बी समथिंग कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम टुक सम टाइम कि अच्छा चलो मैं देखता हूँ, या उन्होंने कुछ और पूछा होगा कि मैं अभी भी बताता हूँ, गिव मी अ मिनट। ठीक है। कि आपका जो खाना है उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये वो ये एक इल्म है जो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया। ठीक है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। ठीक है, कि मैंने अपने लोगों का जो दीन है वो छोड़ दिया, क्योंकि वो अल्लाह ताला में यकीन नहीं करते थे और आखिरत में, ठीक है, और वो काफिर थे। अच्छा, अब ये जो एक बात है कि उन्होंने जो भी तावील बताई, ठीक है, वो आगे आएगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हारा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बताता हूँ। ये जो इल्म है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने किसी बुक से सीखा है या कुछ भी, उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये ऐसी चीज है जो कि अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई है। और अब अल्लाह ताला जो है, वो अल्लाह ताला, ये जो लोग मानते हैं जिस भी खुदा में, मैं इनको नहीं मानता। मेरे जो लोग हैं, मैंने उनका जो रिलीजन है वो छोड़ दिया है। मैं वो ना अल्लाह ताला में मानते हो ना आखिरत में मानते, यानी कि इनकी जो कम्युनिटी थी पहले भी, उसमें ये लोग बिलीव नहीं किया करते थे, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्शियंस में पले बड़े। ये इजिप्शियन गॉड गॉडेसेस के बारे में बात हो रही, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के
जो दीन है वो डिफरेंट था। तो यहाँ पे उनका सॉर्ट ऑफ ये क्लैरिफाई करना कि ये जो मुझे पता चला है ये मेरे रब ने बताया है, दिस इज नॉट समथिंग कमिंग फ्रॉम रा और नामून और समथिंग। ठीक है, कि ये जो इजिप्शियन गॉड्स हैं इनमें से नहीं आया। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये वाला इल्म दिया। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने उनको दावत देने की जगह, देखिए कितने मजे की दावत दी है। उनको दावत देने की जगह उन्होंने अपना बताया कि मैं एक रब में बिलीव करता हूँ जो, और आखिरत में बिलीव करता हूँ, ये लोग नहीं करते। ये भी एक तरीका होता है दावत देने का कि यू पुट योर सेल्फ ऑन द स्टैंड, कि मैं ये करता हूँ, आगे आप देख लो। ठीक है। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै ज़ालिका मिन फ़द्लिल्लाहि अलैना व अलन नासि वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यशकुरून। कि मैं जो हूँ, मैं अपने एंसेस्टर्स का दीन फॉलो करता हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। और हमारे लिए नहीं था कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी भी शय को, किसी भी चीज को नुशरिक, कि हम उस शरीक करें। ज़ालिका मिन फज़लिल्लाह, और ये अल्लाह ताला के फजल में से था जो अल्लाह ताला ने हम पे किया और इंसानों पे किया। लेकिन इंसान ना शुक्र है, इंसान शुक्र नहीं करता। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ तबलीग, अ वे ऑफ दावा। ठीक है, कि यू पुट योर सेल्फ अप टू द स्टैंड। गॉट द आइडिया सो फार? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन सो फार? एक मिनट, मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पर ये ना मेंशन कर रहे हैं अपने ना, मतलब आबाओ अजदाद का ना, हम्म। तो मतलब वो वाकिफ थे या नहीं थे, होंगे जब ही ये जिक्र कर रहे हैं ना यहाँ। मे बी हो, मे बी ना हो। और वो यहाँ से उन्होंने अपने दीन को अगर मेंशन किया है, तो वही वाली बात है कि तुम्हें कैसे पता। उन्होंने फिर वहां पे बोला कि दिस इज समथिंग कमिंग फ्रॉम माय जनरेशन। उस वक्त ये भी कंफर्म नहीं था ना कि कहाँ नबी आ रहे थे, बस ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जनरेशन में से ये आ रहे थे, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम। तो हम्म। ये तो जनरेशन में से आ रहे थे, और बाकी भी तो मतलब नबी आए ना, वो अलग डिफरेंट तो एरा में वो आए। वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता था ना कि उस टाइम पे चाइना में कौन से नबी चल रहे हैं, या अमेरिका में कौन से चल रहे हैं। उनको तो अपने बारे में पता था ना कि मेरी फैमिली में कौन कौन हम्म। है। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी वो एक होती है ना, जोनेशन होती है। तो वही बात है, वो जब दीन के बारे में, अपने दीन के बारे में बता रहे हैं कि मैं इन इजिप्शियन खुदाओं में बिलीव नहीं करता, या इनका जो भी ड्रीम गॉड है मैं उसमें बिलीव नहीं करता, मैं तो अल्लाह ताला में बिलीव करता हूँ, और ये तो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया। तो उन्होंने उनका जवाब देने से पहले अपने जवाब की सॉर्ट ऑफ सोर्स बताई है। जैसे हम भी जब जवाब देते हैं या कोई भी आंसर करते हैं, तो उससे पहले हम बताते हैं कि ये जो तावील है ये मैंने फलानी जगह से निकाली है, या इसके पीछे जो सोर्स है वो ये बनती है। तो यहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी सोर्स बता रहे हैं कि मैं इन खुदाओं में बिलीव नहीं करता, ये तो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दी। मैसेज चेक कर लें, फरीन का क्वेश्चन है। नबूवत मिल चुकी है, पीछे हो गई थी ना कि अल्लाह ताला ने उनको हिकमत सिखाई, तो वो वाला पोर्शन तो हो गया था, लेकिन एक्सप्लिसिटली नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि अल्लाह ताला ने उनको ये तावील सिखा दी, इल्म सिखा दी। अच्छा, ये इन्हें बचपन से नहीं मिला था,
یہ خوابوں کی ताबीर, लेकिन हमने तो पहले पढ़ा था कि जब उन्होंने 7 सितारे और ये वो जो 11 उन्होंने, सितारे थे। हाँ उन्होंने देखी थी, और फिर उसमें था ना कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला आपको सिखाए। और वो दुआ करने के बाद फिर बीच में था कि फिर वो बड़े हुए और अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबीर सिखाई। ये आई थी ना आया। फॉल्स ब्लड के बाद बॉटम ऑफ द वेल, बॉटम ऑफ द वेल के बाद वीपिंग, रेसिंग, और उसके बाद उन्होंने फोन लगा लिया पानी। then ये कज़ालिका मक्कन्ना लि यूसुफ फिल अर्द, क्या हम उनको एस्टेब्लिश करेंगे। वलिन वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और हम उनको सिखाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वाला इल्म सिखाया गया। ये मुजारे का सीगा आता है ना। हम्म, तो इसलिए ये ऐसे हुआ। अगर यहाँ पे ये मुजारे वाला सीगा ना होता तो फिर हम कहते ना कि पास्ट में भी था। राइट। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माय मेमोरी सर्व्स मी वेल। ओके, वाइन प्रेसिंग बाद इसके बाद this। हम्म, तो ये उन्होंने फिर आगे बता दिया। अब यहाँ पे बजाय जवाब देने के, क्योंकि अभी तक वो जवाब दे सकते थे, लेकिन वो अब यही मौका, क्योंकि वो दो बंदे सुन रहे हैं, तो वो थोड़ी सी तबलीग कर रहे हैं। ठीक है। या साहिबई, अ, या साहिबई सिजने अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल qahhar। के मेरे जो साथियों, मुझे ये बताओ कि ये अलग अलग हर चीजों का खुदा बेहतर है, या एक अल्लाह ताला जो इन सब पे कादिर है, इन सब पे, इन ये सारी की सारी चीजें वो कर सकता है, वो बेहतर है। ठीक है। पॉइंट इज, इन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो डायरेक्ट जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अब ये दो बंदे मेरी बात सुन रहे हैं, तो लेट मी डू सम तबलीग। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि यार तुम ये करो या तुम ये करो, या अल्लाह ताला ने ये बोला है। उन्होंने बोला देखो, ये जो ड्रीम है, ड्रीम की इंटरप्रिटेशन का मैं बता दूं कि मैं इन खुदाओं में नहीं मानता। मेरा तो मैं तो एक अल्लाह ताला में मानता हूँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि एक अल्लाह ताला होते हैं? ये तो सारे लोग इतने सारे खुदाओं में मानते हैं। ठीक है, डेथ गॉड ये है, लाइफ आफ्टर डेथ पूरी मिथोलॉजी है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो हर चीज का अलग अलग इन्होंने खुदा रखा हुआ है। तो ये तो एक ही खुदा है, और मेरे पास जो रिलीजन है, अच्छा तुम्हें कैसे पता अल्लाह ताला खुद आए थे? नहीं नहीं, देखो मेरा जो रिलीजन है वो मेरे एंसेस्टर्स का भी वही है। हजरत इब्राहिम थे, फिर उसके बाद हजरत इसहाक, ये मेरे एंसेस्ट्री चल रही है, तो मैं उनके रिलीजन पे हूँ। और खुद बताओ, ये अलग अलग खुदा ज्यादा बेहतर है, या फिर एक खुदा जो ये सब कर सके? क्या चीज ज्यादा बेहतर है? तो दिस इज समथिंग जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बजाय ऑफ टॉपिक या ऑफ ट्रैक जाने के, उनको बात में से एसोसिएटेड बात निकाली, थोड़ी सी तबलीग की। ठीक है। और वापस पे भी उसी बात पे लेके आएंगे।
لیکن فی الحال یہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے کہ آپ جو بھی سیشنز کرتے ہیں یا جو بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیسے ہوتا ہے، تو یہ اس کا ایک بڑا افیکٹو وے ہے کمیونیکیشن کا. کے بعد شروع کر دیا تو بات آپ شروع کیسے کرو؟ تو یہ والی جو بات شروع حضرت یوسف علیہ السلام نے کی وہ یہ کی کہ ان کو جو بھی سوال دیا گیا انہوں نے اس کے جواب میں پہلے سورس ایکسپلین کی کہ مجھے یہ جواب آتا کہاں سے، یا میرے پاس یہ علم آیا کدھر سے، اس کے پیچھے ریفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ سمجھ آیا یا تھوڑا سا اور ایک دفعہ سمجھا دوں؟ اس میں مطلب کیا اگر ہم، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز بتا رہے ہوں تو پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے یہ ہمیں سورس کہاں سے ملی ہے، یہ کہاں سے میں نہیں. یہ بات کر رہی آسک می اے کوشچن ریگارڈنگ ٹو حضرت یوسف. اینی کوشچن. ہے ابھی؟ میں یہ سوچ رہی ہوں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر مطلب وہ لوگ ڈفرینٹ گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں، وہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں، تو وہ ہوں. مطلب یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ظاہر ہے وہاں پر ڈفرینٹ گاڈ کو پوجنے والے ہیں، اب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس وہ سورس ہے. ہاں، ایک تو تو میں سوس یہ آ گیا نا، ایک تو سوس آ گیا. ہوں میں اس تبلیغ کے طریقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بات کی کیسے. جیسے کہ آسک می اینی کوشچن ریگارڈنگ حضرت یوسف، کوئی بھی. کیا پوچھوں؟ کچھ بھی، اینی تھنگ. لیٹ سے ہم ابھی ملیں، کہیں پہ ملیں، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھیں. ان کے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. ہم، انہوں نے کتنی خوابوں کی تعبیر قرآن میں بتائی؟ اوکے. حضرت کوشچن ہے آپ کو، حمزہ بھائی، آپ کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے خوابوں کی تعبیر بتائی؟ اب ٹیکنیکلی میں چار خواب سیدھا بتا دوں کہ جی چار خوابوں کی تعبیر ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، یا میں بتا دوں کہ سورہ یوسف کے اندر چار خوابوں کی تعبیر ہے یہ. اب یہ ایک طریقہ ہے جواب دینے کا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ میں بولوں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا ان کی سٹوری قرآن پاک میں کہیں اور نہیں ہے، صرف ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے نا کمبائن کر کے سورہ یوسف میں رکھی ہے. اور آپ کو پتا ہے سورہ یوسف کا قرآن پاک کا جو سٹائل ہے نا وہ ہر سورہ کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. سورہ یوسف از یونیک کیونکہ سٹارٹ سے اینڈ تک جیسے کہ ایک سٹوری چلتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری اس سورہ میں چلی ہے. باقی کسی سورہ کا ایسا سٹائل نہیں ہے. تو اگر سٹوری آپ نے پڑھنی ہے نا خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو آپ سورہ یوسف پڑھیں، وہ سٹارٹ سے اینڈ تک انہی کی سٹوری ہے. اس میں سورہ یوسف میں آپ کو نا ان کی سٹوری ڈیٹیل میں مل جاتی ہے. خیر دیٹ واز آن دا سائڈ نوٹ. تو آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر ان کا پہلا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، چوتھا یہ تھا. ابھی جو یہ میں نے ایکسٹرا انفارمیشن بتائی اباؤٹ دا اسٹائل آف دا سوراز، یا کہ سورہ یوسف جو ہے وہ اس طرح سے یونیک ہے، this also enters into a sort of a تبلیغ پارٹ. ٹھیک ہے، دعویٰ پارٹ، کہ چلو آپ کو ایک چیز پتا تھی تو آپ نے ان کے جواب کو ڈس ایسوسیٹ نہ کرتے ہوئے آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا ایکسٹرا انفارمیشن اٹیچ کر دی تاکہ یہ لوگ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو جائیں. گاٹ دی آئیڈیا؟ لیکن انفارمیشن بھی اتنی جتنی انسان نا اس کو، ایک ہوتا ہے نا کہ ایکسٹرا انفارمیشن دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں،
तो हाँ एक कि पॉइंट पर आकर आप। जब आप हम्म। छोड़ के तो वो होता है ना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये हम्म। इधर उधर नहीं निकलना, लेकिन उससे एसोसिएटेड आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए सही, लेकिन इस तरह से तीन चार पॉइंटर दे के फिर उनको जवाब दो, ताकि हो सकता है वो इस क्यूरियोसिटी पॉइंटर में से कुछ और पूछ लें। सही। ठीक है, तो जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी ये बता रहे हैं, इजंट दिस अ क्यूरियोसिटी पॉइंटर, कि तुम लोग जिस मिथोलॉजी में बिलीव कर रहे हो ऐसा तो मैं कुछ बिलीव ही नहीं करता। राइट। एक ये भी हो सकता है ना कि अब एक आदमी है, वो मान रहा है अपने गॉड को और वो सुनना भी नहीं चाह रहा है। तो मतलब इतनी हद तक बात नहीं कहनी है उनके मुतालिक। थोड़ा बहुत किया उन्होंने और फिर वो आगे बढ़ गए। बहुत हम्म। ज्यादा भी नहीं किया ना, तो बुरा ना लग जाए उनके गॉड के बारे में ये बातें हो रही हैं। उनके गॉड के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अपने गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ मतलब उन्होंने वो यही बताया ना कि ये मेरी जनरेशन है और मैं इनको फॉलो करता हूँ और एक ही अल्लाह को फॉलो करना है, बजाय इसके हम्म, कि डिफरेंट गॉड को फॉलो किया जाए। हाँ, तो वो आगे आ रहा है ना, ये देखिए, मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंजलल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, के अ, ये उसके अलावा किसी की इबादत नहीं है, लेकिन जो नाम तुमने अ, दिए हुए हैं उनको और तुम्हारे आबा व अजदाद ने, अल्लाह ताला ने उनकी कोई भी सुल्तान, कोई भी अथॉरिटी नहीं भेजी कि ये जो नाम दे रहे हैं, रॉ हो गया या नामून हो गया, ये जो भी, तो इन नामों के पीछे कोई अथॉरिटी है ही नहीं। तो तुम ये किस खुशी में उन अल्लाह ताला के अल्लाह ताला को इन नामों के साथ एसोसिएट कर, वो कहते हैं ना कि नहीं नहीं खुदा जो है वो तो एक ही है। ठीक है, तो हम उनको डिफरेंट नामों से बुलाते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो नाम भी तो वो बुलाओ जिसके पीछे कोई अथॉरिटी हो, ये किस खुशी में तुम ले आए। इन्निल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, के ये अ, जो हुक्म है वो अल्लाह ताला के अलावा कोई बंदा नहीं देता, मतलब किसी का हुक्म नहीं चलता इस मामले में। अमर अल्लाह तअबुदु इल्ला इय्या, के अल्लाह ताला अकेले के अलावा आप किसी की इबादत ना, आप इबादत नहीं करोगे सिवाय अल्लाह ताला की, किसी की आप इबादत नहीं कर सकते। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन, के ये अल्लाह ताला का दीन कय्यिम है, सस्टेन करने वाला है। अल्लाह ताला का दीन जो है ये कायम रहता है। वलाकिन, लेकिन अक्सर नासी ला यअलमून, अक्सर लोगों को ये बारे में नहीं पता कि अल्लाह ताला का जो दीन है वो कय्यम है, वो रहने वाला है, वो बरकरार रहने। ठीक है, एंड दिस इज द राइट वन। खैर, अब इतनी तबलीग करने के बाद, फिनिशिंग क्लेम्स करने के बाद वो आगे, हाँ उन्होंने सवाल छोड़ा नहीं, वो आगे अब जवाब देने पे। क्यों, देखो शुरू वहां से हुआ था ना, या साहिबई अ, या साहिबई सिजन, मेरे साथियों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खम, ठीक है, आप में से एक बंदा जो है वो अपने रब्बहु खमा, कि वो अपने रब को खमरा वाइन पिलाए। ठीक है, वो उसको, मतलब कि रब्बहु यहाँ पे आया है फिरौन के लिए, यानी कि जो मिस्र का बादशाह है उसके लिए, कि आप में से जो एक है वो उन अपने उसको वाइन पिलाएगा, यानी ही इज गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और वो वहां पे उनको वाइन पिला रहा होगा, यानी कि जो उसका ख्वाब था वो सॉर्ट ऑफ एज इट इज पूरा होगा, कि वो जो वाइन है वो यूज करेगा और वाइन के साथ वर्क करेगा। वह अम्मल आखरू, और जो दूसरे वाला है,
फयुस्लबु फताकुल फयुस्लबु फताकुल तयरु मिन रअसिही, कि वो जो है सूली चढ़ जाएगा और जो परिंदे हैं वो उसके सर को नोच के खाएंगे। कुदियल अम्रुल्लज़ी फीही तस्तफ्ती तस्तफ्तीन। तो ये अ, जवाब है उनका, जो कि आपके बारे जिसके बारे में आपने पूछा था, जिसके बारे में आपने तफ्तीश की थी। उर्दू में वर्ड आता है ना तफ्तीश, कम्स फ्रॉम दिस। ओके। अब दो इसके तावीलें निकलेंगे। वो जो शराब वाला था, आप अपने जो फिरौन है, जो मिस्र का किंग है, बादशाह है, आप उसको शराब पिलाएंगे तो यू गेट द गवर्नमेंट जॉब। और जो दूसरा जिसने सर पे ब्लेड उठाई हुई है, तो वो जो है वो सूली चढ़ जाएगा, और उस सूली पे जो परिंदे हैं वो उसको उसके सर को नोचेंगे और उसको खाएंगे। तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बता दी कि बेटा एक तो तुम में से मरने लगा है, दूसरे को टेंशन की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब करेगा। वक़ाल लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिनहुम, और फिर उन्होंने बोला एक को, कि उनमें से जिसने बच जाना, उनको उन्होंने बोला अज़कुरनी इंदा रब्बिक, कि मेरा जिक्र करना अपने अपने रब यानी कि अपने मास्टर के सामने, यानी कि फिरौन के सामने, यानी कि बादशाह के सामने, मेरा जिक्र करना अपने बादशाह के सामने। फअंसाहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही फलबिसा मिन सिजनी बिदअ सिनीन। और शैतान ने उनको जिक्र करना भुला दिया, तो वो उस जेल में कई साल रहे। बिदअ सिनीन, कई साल रहे। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक खनकने वाली बात है, वो क्या है? वो वर्ड है रब। कि जैसे एक मुल्क का बादशाह है जिसकी कोई सुनता नहीं, वो और बात है। लेकिन अगर एक मुल्क का बादशाह है जिसकी लोग सुनते भी हैं, और वो जो बादशाह है वो फेयर भी है, लोगों का ख्याल भी रखता है, ठीक है, और लोगों का ख्याल रखने के साथ साथ लोगों को बोनसेस, पेनल्टीज, ये वाली चीजें भी देता है, तो अरबिक की जबान में, अभी मैं ये उर्दू वाली बात नहीं कर रहा, अरबिक की जबान में उस मास्टर को भी आप रब कह सकते हो, जिसकी आप पे ओनरशिप हो, जिसकी आपके ऊपर अथॉरिटी हो, जो आपका ख्याल रखे, स्टेट को एक अच्छी तरीके से लेके चले। तो अरबिक की जबान में दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स बैठती। क्लियर सो फार? कोई सवाल? ख्वाब की तबीर तो उन्होंने बता दी। अब ये जो है इसका टाइमलाइन नहीं बताया ना अभी इसमें, कि वो कितने साल और रहे, उसके फौरन बाद वो निकल गए थे, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया है कि अपने रब से जाके वहां पे बात करना, मेरे बारे में भूल नहीं जाना। बिकॉज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। हम्म। अगर इम्पोर्टेंट होता तो अल्लाह ताला लिख देते। उनको छोड़ो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने दिन रहे, ये बिदआ की जगह यहाँ पे अल्लाह ताला नंबर डाल देते। हम्म। लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, जितने भी साल रहे, इतना बता दिया कि कई साल रहे, यानी कि ही नो लॉन्गर इज अ टीनेजर नाउ, ही इज एन एडल्ट ऑफ समथिंग राउंड अबाउट 30 to 40 के दरमियान। राइट, somewhere around 30, 40 ish, 30 ish। ये कहाँ से पता चला?
یہ کہاں سے پتا چلا؟ پیچھے جب ان پہ الزام لگا تھا تو وہاں تک بات تھی کہ ہی میچورڈ انٹو اے ینگ ایڈلٹ، تو ہی واز سم ویئر اراؤنڈ 20. یہاں پہ اس کے بعد جو ورڈ بدعا یوز ہوا ہے کہ وہ کئی سال رہے، تو کئی سال کے اندر 5 6 ایئرس 7 ایئرس 10 ایئرس سم تھنگ لائک دس 12 ایئرس، تو ناؤ ہز ایج از رفلی اراؤنڈ 30. ناٹ ایگزیکٹ بٹ رفلی. صحیح. This is not to point out کہ ان کی ایکچوئل ایج کیا ہے. This is to point out کہ now he no longer is a young adult. He is well into adulthood now. ٹھیک ہوگا؟ کوئی سوال نہیں؟ چھٹی کریں؟ ہوں. صحیح ہے. چھٹی. چلیں، جزاکم اللہ خیر. باقی ہم انشاءاللہ صبح کریں گے نیکسٹ والا رکو. اللہ حافظ.